Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about excess demand. Excess demand, it refers to a situation when aggregate demand is more than aggregate supply to the corresponding level of full employment in the economy, which is known as the excess demand. अब इसमें excess demand refers to a situation when aggregate demand is more than aggregate supply to corresponding level of full employment in the economy. Means aggregate demand refers to a situation when aggregate demand is more than aggregate supply to corresponding level of full employment in the economy. यहाँ पे क्या होता है, aggregate demand is more than aggregate supply in economy to corresponding level of full employment, which is known as the excess demand. According to diagram, this is a x-axis and this is a y-axis. Income, output and employment we are represent along to x-axis. Income, output and employment we represent along aggregate demand. This is aggregate supply. This is aggregate demand equal to consumption expenditure plus investment expenditure. This is AD1 equal to consumption plus investment plus change of investment. This is a point M, this is a point E, and this is the point F. This is a situation full employment equilibrium. Full employment equilibrium. And this is known as the inflationary gap. Inflationary gap. This area is known as inflationary gap. And the distance between this is known as delta I, change of investment. First, I would like to explain the full employment equilibrium. Full employment equilibrium, it refers to a situation when aggregate demand is equal to aggregate supply and all those who are willing and able to work at the existing wage rate and get work without any difficulty, which is known as the full employment equilibrium. At the full employment equilibrium,
aggregate demand is equal to aggregate supply. In this situation, aggregate demand is equal to consumption plus investment. अगेन जो हमारा चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होगा तो हमारी जो दिस इज एक्चुअल कंडीशन, this condition that is there is a level of full employment means aggregate demand equal to aggregate supply at this point in an economy is a full equilibrium. Again this is condition is known as inflationary gap is equal to inflationary gap is equal to FM minus EM is equal to EF. This is a inflationary gap. Inflationary gap, it refers to the difference between actual demand and required demand in an economy which is known as the inflationary gap. Actual demand and required demand का जो difference होता है उसको हम लोग बोलते हैं inflationary gap. अब इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारा inflationary gap refers to the gap by which actual aggregate demand is more than required aggregate demand to itself full employment equilibrium. मीन्स हमारा जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है हमारी रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ग्रेटर है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी व्हिच इज नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप. अब इसमें हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है. जैसे हमारा एक्सेस डिमांड का इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एग्रीगेट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेस डिमांड. पहले हम रीजन देखते हैं. इसमें आपका रीजन्स ऑफ एक्सेस डिमांड. रीजन्स ऑफ एक्सेस डिमांड. अब इसमें हमारा देखते हैं जैसे हमारा रीजन राइज टू प्रोपेंसिटी कंज्यूम. एक्सेस डिमांड की कंडीशन में क्या होता है, हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइज होता है. फर्स्ट आपका है राइज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. In case of the inflation, the propensity to consume will be raised. In case of the propensity to consume is rise, there is consumption capacity will be raised because in this situation aggregate demand is more than aggregate supply. तो उसमें जो हमारा जैसे इसमें देखिए हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें कंजम्पशन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा और उसमें क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन कंडीशन होती है उस कंडीशन हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है. और उसमें देखते हैं हमारी जो प्रोपेंसिटी टू सेव होती है, ऐसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो हमारी उसमें प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी फास्ट होगी. अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा रिडक्शन इन टैक्सेस. अगर इसमें रिडक्शन इन टैक्सेस होता है इकोनॉमी में तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी कंजम्पशन, हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी. रिडक्शन इन टैक्सेस. रिडक्शन इन टैक्सेस कंडीशन क्या होगा, जब गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस करती है तो पब्लिक का जो उसमें कंजम्पशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसमें एक्सपेंडिचर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंजम्पशन करेगी. उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा. जब गवर्नमेंट जो है उसमें टैक्सेस रिड्यूस करती है तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है. जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे डिस्पोजेबल इनकम जो होगी इंक्रीज होगी और उससे क्या होगा कि हमारा जो कंजम्पशन होगा इंक्रीज होगा. अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज होता है उस कंडीशन में भी हमारी एक्सेस डिमांड इंक्रीज होती है. तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो उसमें जैसे इसमें गवर्नमेंट पर पैसा जब ज्यादा होता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन तो हमारी एक्सेस डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें गवर्नमेंट जो है डिफरेंट टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेगी
और उसमें आप देखते हैं कि इन केस ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, तो उसमें हमारा ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होगा तो एक्सेस डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अगर उसमें पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब इसमें देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट होगा इंक्रीज होगा और उसमें हमारा जो इंपोर्ट होगा फॉल होगा। जैसे इसमें देखिए हमारा फॉल इंपोर्ट्स एंड राइज एक्सपोर्ट। एक्सेस डिमांड की कंडीशन में हमारी जो उसमें इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है। ऑलरेडी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट कंडीशन जो होगी फॉल इन इंपोर्ट्स, इस कंडीशन में हमारा जो इंपोर्ट्स फॉल होगा और हमारा एक्सपोर्ट राइज होगा, क्योंकि इसमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी हमारी इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जैसे इसमें फॉल इन इंपोर्ट कंडीशन में डिक्रीज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेस इन कंपेयर टू द डोमेस्टिक प्राइसेस। आपका इंपोर्ट फॉल होने का रीजन इसलिए होगा कि उसमें आपकी देखते हैं जो हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमी होती है उसमें आपकी फॉरेन गुड्स के प्राइसेस हाई होंगे और हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स होगी उसके प्राइसेस लो होंगे, तो उस कंडीशन में हमारा इंपोर्ट जो होता है वो आपका फॉल्स होता है और उसमें एक्सपोर्ट हमारा राइज होगा। जैसे इसमें देखते हैं कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखते हैं गुड्स के प्राइसेस जो है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग गुड्स इंपोर्ट करते हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं हमारे जो इंडियन इकोनॉमी की जो हमारी जैसे हमारी कंट्री की जो गुड्स होती है उसके प्राइसेस लो होंगे तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। इंटरनेशनल मार्केट हमारे गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो राइज होगा। अब इसमें इसका मेन रीजन होता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होगा तो आपके गुड्स के प्राइसेस कंपेरेटिवली भी लो होंगे, तो उस कंडीशन हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इसमें आपका अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें विच इज कॉजेड टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो उसमें हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है काज बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। जैसे इसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग कंडीशन क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, तो आपके ये सब रीजंस होते हैं। और उसमें आप देखते हैं जैसे इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके एक्सेस डिमांड पे, जो 3 इम्पैक्ट पड़ता है। पहले इफेक्ट ऑन आउटपुट, तो इसमें हमारे आउटपुट पे कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो उसमें हमारे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा आपका इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इसमें देखो इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी, उस कंडीशन हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट आपका इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, इसमें देखो जनरल प्राइस लेवल जब आपका उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन की कंडीशन इकोनॉमी है, तो जनरल प्राइस लेवल जो होता है इंक्रीज होगा, गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो उसमें देखते हैं जैसे उसमें जो आपकी जो उसमें देखिए जो गुड्स होगी उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, जनरल प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज होगा। तो उसमें जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो आपका इन्फ्लेशन के काज, जैसे हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन होगा उस वजह से हमारे इकोनॉमी में देखते हैं जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होगी, उस कंडीशन में हमारा देखते हैं जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है। तो आपका इसमें एक्सेस डिमांड के 3 इम्पैक्ट होते हैं। पहले तो आपका होता है इसमें इफेक्ट ऑन आउटपुट, देयर इज नो चेंजेस इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ द आउटपुट। दूसरा आपका इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट,
जब आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में होगी, उस कंडीशन हमारे एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा आपका इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, इसमें देखिए आपका जब आपका उसमें इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई की सिचुएशन होगी, ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे इकोनॉमी आपकी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बट यहाँ पे क्या है एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई की सिचुएशन होगी, तो वहाँ पे आपका जनरल प्राइस लेवल जो है इंक्रीज होगा, गुड्स के प्राइसेस जो है रैपिडली इंक्रीज होंगे। तो इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे।